So good morning everyone. So today I'm going to start with my another class, meiosis 1 and meiosis 2. So basically in this class, I've already spoken to you previously about meiosis and mitosis, and in today's class I'm talking about only meiosis in details, because in last class I have not spoken to you about the phases of meiosis. Okay, so in today's class I'll talk about the phases of meiosis and also type of meiosis in details, their importance, their history, okay, and the entire process and the difference between meiosis 1 and meiosis 2. So let's start with today's class. Okay, so first we'll talk about history. I told you about this in previous class, but in today's class a bit more. Okay, so first of all, Oscar Hartwig in 1876, he had discovered meiosis in sea urchin eggs. Okay, so just a decade later, there's another person known as Edward van Beneden. Okay, so he observed the same process of meiosis in Ascaris roundworm eggs. Okay, so this happened around in 1883. So you can see the difference. So after that, now this meiosis term, okay, this meiosis term was given by J.B. Farmer and J.E. Moore in 1905. So what did he say? How did he term meiosis? They said that since the chromosomes in this meiosis, the chromosomes is reducing, okay, जो नंबर है इसका reduce हो रहा है, less हो रहा है, तो they gave the term meiosis, because meiosis का मतलब क्या है? Lessening. The term itself means lessening. Okay, so meiosis was given to this process name. Now what happens in this process? In this process a germ cell will divide and it will form 4 sex cells or 4 haploid cells. ठीक है, तो यहाँ पे जब एक ही सेल से स्टार्ट होगा, लेकिन meiosis 1 तक उसका क्या होता है? उसका रिडक्शन होता है, और meiosis 2 में क्या होता है? वो इक्वेशनल होता है, just like mitosis. And at the end 4 haploid daughter cells are produced. Okay, now why is this process important? It is important for sexual reproduction, क्योंकि इससे क्या होता है? sperm cells और egg cells produce होते हैं. Fine. Okay, now what are the stages of meiosis? तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था कि meiosis में क्या क्या होता है आपका. ठीक है, तो प्रोफेज, metaphase, anaphase, telophase. But here we'll talk about the details of prophase, because itself prophase में बहुत कुछ होता है. ओके, तो पहले meiosis 1 के बारे में बात करें. एंटायर meiosis में 2 स्टेज में होता है, meiosis 1, meiosis 2. तो पहले हम meiosis 1 के prophase 1 के बारे में बात करेंगे. ओके, so prophase 1, अगर देखिए prophase 1 यहाँ पे फिर से divided है into how many stages? 5 stage. You can see in the diagram out here. Diplotin stage, zygotin stage, pachytin, diplotin and your diakinesis. ठीक है मैम. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप. ठीक, यहाँ पे देखिए पहला है इंटरफेस. इंटरफेस क्या था? जो आपका माइटोसिस या मेयोसिस स्टेज के साइकिल से हमने देखा था प्रीवियस में, देख लीजिएगा आप एक बार. सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल में बिफोर एंटरिंग द एम फेज, इंटरफेस फेज पहले होता है. तो इंटरफेस फेज के बाद क्या होता है? आपका माइटोसिस या मेयोसिस फेज में एंटर होता है. ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि उसमें G1, S फेज, G2 फेज, ठीक है, गैप फेज और सिंथेसिस फेज जो होता है. तो उसके बाद इंटरफेस में क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हुआ है, सेंट्रोसोम्स आपके कॉर्नर में है. तो जब ये एंटर करता है, ये प्रिपरेशन हो रहा है टू एंटर इन द एम फेज. तो जब एम फेज में पहले एंटर करता है, पहले क्या होगा? प्रोफेस 1 होगा. प्रोफेस 1 में क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे जो आपका क्रोमैटिन था वो कंडेंस हो रहा है. ओके, दे आर कंडेंसिंग, और धीरे धीरे क्या होगा? आपका न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू करेंगे. ठीक है, जो सेंट्रोसोम्स है वो भी धीरे धीरे क्या होगा? दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड. तो लेप्टोटिम स्टेज में यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पे क्रोमोसोम डेंस जो था वो थिकनिंग हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम स्टिक हो रहा है, वो कंडेंस हो रहा है. देन आउटर एंड बाइवेलेंट में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टेट्राइड फॉर्मेशन हो रहा है. क्रोमोसोम पहले जो था वो थिकन होके अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ वो आके वो पेयरिंग हो रहा है. ठीक है, इट्स कमिंग एंड फॉर्मिंग. जैसे कि अगर ये आपका क्रोमोसोम है तो एक साथ आ रहा है, वो एक साथ आके वो टेट्राइड फॉर्मेशन कर रहा है इन योर ज़ाइगोटिन स्टेज. यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? साइनेप्सिस हो रहा है. ठीक है, ज़ाइगोटिन में आपका साइनेप्सिस हो रहा है, और आपका यहाँ पे साइनेप्टिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रॉसिंग ओवर. आप मेरे क्रॉसिंग ओवर क्लासेस में देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स में बताया गया है ये इसके बारे में. सिनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्टिनल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फिर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है. यू कैन रिफर टू दैट क्लास ऑफ माइन.
तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिनेप्सिस हो रहा है एंड स्टार्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोटिन स्टेज में, ठीक है। टेट्रेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे होमोलोगस पेयर एक साथ आ रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग, कमिंग एंड जॉइनिंग इन द सेम लेंथ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, व्हेन दे एंटर द पैकाइटिन स्टेज, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम हो रहा है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपका, सी कि इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, so you have to write पैकाइटिन स्टेज, okay, and synapsis occurs in zygote stage। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकाइटिन में आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ओके। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एट अ पर्टिकुलर साइट वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आपका जीन्स हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ओके। एंड देन आउटवर्ड्स हैपनिंग दे आर फॉर्मिंग कायस्माता, ठीक है। तो बेसिकली डिप्लोइड स्टेज में क्या होता है, कायस्माता फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ओके। ये क्रोमोसोम है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कायस्मा, जहाँ पे ये आपका, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कायस्माता, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे है जो एक साथ, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है, और इसमें क्या होता है आपका, धीरे धीरे सेंट्रोसोम्स क्या है ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। अभी डायकाइनेसिस लास्ट स्टेप है प्रोफेस का। डायकाइनेसिस में क्या होता है आपका, धीरे धीरे आपका क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एंड जो सेंट्रोसोम है वो कंप्लीटली ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं, एंड क्या होता है आपका, स्पिंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम बोथ द सेंट्रोसोम्स स्पिंडल फॉर्मेशन होना शुरू होगा, और जो आपका जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, दे विल स्टार्ट टू अटैच विथ दोज स्पिंडल फाइबर्स थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो ये आपका स्पिंडल फाइबर्स है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, आपका जो सेंट्रोमियर है, जो क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर है वहाँ पे धीरे धीरे वो अटैच करेंगे विद हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, अटैच करेंगे, और दे विल प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू कम इन द सेंटर ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एंटायर सेल, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको बीच में लेके जा रहे क्रोमोसोम्स जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसको बीच में लेके जा रहे, कौन लेके जा रहा है, स्पिंडल फाइबर्स, वो उसको होल्ड कर रहे ताकि क्रोमोसोम्स क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बीच में अलाइन कर सके, ओके। एट द इक्वेटर देखिए बीच में, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये आपका शुरुआत है, प्रोफेस 1 में क्या होता है, ये सब होता है, एंड देन इट प्रिपेयर्स दोस होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू कम इन द सेंटर ऑफ द सेल। अभी देखिए आ गया, अभी यहाँ पे हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पे क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली मेटाफेज 1 में क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, देखिए ये आपका क्रोमोसोम है, ओके, क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे हमने दिखा है कि सपोज यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है, सपोज इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो ये क्या क्या फॉर्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेम करते हैं ए और बी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या हो जाएगा ये चीज, जब ये क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये अलग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए और स्मॉल बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए और कैपिटल बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। तो ये जाके यहाँ पे बीच में जाके ये क्या सेंटर में आ जाएंगे। अभी देखिए क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो क्या होगा, तो आइदर होमोलोगस, देखिए आइदर ये वाला पेड़, आइदर ये वाला और ये वाला एक साथ चले जाएंगे, या फिर ये वाला या फिर ये क्रोमोसोम एक साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जितना जगह पे जितना क्रॉसिंग ओवर होगा उतने चांसेस होंगे ऑफ लाइक पेयरिंग के, उतने चांसेस होंगे, ओके, उतना एक्सचेंज होने के चांसेस होंगे ये कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है मेटाफेज 1 में। फिर एनाफेज 1 में क्या होता है, धीरे धीरे जो आपका सेंट्रोसोम मुझे जो है ऑपोजिट साइड में जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। तो एनाफेज 1 में दे आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, तो ये आप ऑपोजिट पोल्स में आ रहे हैं, ठीक है। एंटीलोफेज में क्या होगा, ये कंप्लीटली देखिए टेलोफेज में क्या होगा, कंप्लीटली वो ऑपोजिट साइड में आ जाएंगे, एंड धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, आपको देखा होगा, उसमें क्या होगा, आपका कंप्लीटली जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, द न्यूक्लियर
जो सेल है वो उसका जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगा एंड इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि बेसिकली क्या हो रहा है। म्यूसिस 1 में हमने क्या देखा है, शुरुआत होता है 2n से। ठीक है, तो आफ्टर म्यूसिस 1 क्या होता है आपका n और n। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलोगस। पहला तो यहाँ पे देख सकते हैं कि n नंबर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 2n जो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स फ्रॉम मदर, 23 पेयर्स फ्रॉम द फादर। 46 पेयर, यही 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, दे आर डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि जब ये जो क्रोमोसोम्स है आपका, ऐसे आपके 46 है और ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है। आपका एस फेस में देखा था, सेल साइकिल में रेप्लिकेशन हो रहा है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये सब डबल स्टैंडर्ड है। तो जब म्यूसिस 1 होता है तो क्या होता है, ये n और n 23 पेयर्स या 23 हो जाता है, ये 23 हो जाता है। 46 क्रोमोसोम से 23 पेयर्स होता है, याद रखिएगा 23 पेयर्स होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से अलग होगा, डबल स्ट्रैंड था। ठीक है, ये सिर्फ अलग, ये वाला पार्ट अलग हो रहा है, मतलब यहाँ से आपका ये और ये अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे अलग हो रहा है, तो देखा जाए तो 23 हो रहा है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड था। ठीक है, अभी जब म्यूसिस 2 होता है तो क्या होता है, इससे और 2 होगा n n, और इससे और 2 होगा n n। अब आप सोचेंगे कि कैसे ये हैप्लॉइड सेल्स हो रहा है, हाउ कैन दिस बी हैप्लॉइड, क्योंकि ये तो 23 ही रहेगा, जैसे कि ये 23 है, ये भी 23 ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली 46 क्रोमोसोम से 23 और फिर 23 से 23 और यहाँ से 23। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n से n, लेकिन यहाँ से n से क्या हो रहा है, n n n n, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब n है। ठीक है, तो ये आपका 4 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऑल आर हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी हैप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, देयर आर हैप्लॉइड। तो बेसिकली म्यूसिस 1 में क्या हो रहा है, आपका रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 46 से 23। लेकिन जब म्यूसिस 1 से म्यूसिस 2 हो रहा है, इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इट इज जस्ट लाइक द माइटोसिस पार्ट। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशनल होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, देखिए यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, तो 23 पेयर्स, फिर यहाँ से आपका क्या आएगा, देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाया था मैंने कि डबल स्ट्रेंथ था, राइट, ये डबल स्ट्रेंथ था, इसमें से 2 आया था। अभी ये म्यूसिस 1 में हो रहा है। ठीक है, 23। अभी इसमें और क्या होगा, 2 होगा। इसमें क्या होता है, पहले में क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन हो रहा था इन म्यूसिस 1 में। म्यूसिस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन। समझ में आया आपको भी? देखिए ये हो रहा है आपका म्यूसिस 2 में, अंडरस्टूड। तो म्यूसिस 1 में क्या हो रहा है, आपका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहे हैं बट डबल स्टैंडर्ड, और म्यूसिस 2 में क्या हो रहा है, आपका हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स, सेम नंबर ऑफ सेल्स एज द पेरेंट बट दे आर ऑल सिंगल स्टैंडर्ड। ओके, तो ये हो रहा है आपका इन म्यूसिस 2। बाकी जो स्टेप्स है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब सेम है। जो म्यूसिस 1 होता है उसमें जो आपका टेलोफेज स्टेज होता है, कभी कभी वो क्या होता है, टेलोफेज तक, वो टेलोफेज के बाद वो साइटोकाइनेसिस में एंटर नहीं करता है, वो डायरेक्टली फिर से प्रोफेज में चला जाता है। साइटोकाइनेसिस होते ही वो प्रोफेज 2 में चला जाता है, क्योंकि म्यूसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, म्यूसिस 1 से म्यूसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा साइटोकाइनेसिस होने के साथ साथ ही वो आइदर म्यूसिस 2 में एंटर हो जाएगा प्रोफेज 2 में, या फिर कभी कभी डायरेक्ट टेलोफेज से ही वो प्रोफेज 2 में एंटर हो जाता है। And the rest steps
दे आर ऑल सेम। फिर से आपका न्यूक्लियर एनवेलप आपका डिसइंटीग्रेट होगा, आपका क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड होगा, फिर से वो आपका क्या हो रहा है, आपका वो मेटाफेज में मिडिल सेंटर प्लेट में आ जाता है, ठीक है, उसको स्पिंडल फाइबर्स होल्ड करते हैं, एनाफेज में वो टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड पुल अप होते हैं, और टेलोफेज में वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, वो ऑपोजिट साइड्स में चले जाते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो मियोसिस 1 है उसमें आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, आपका सिनेप्सिस हो रहा है, तो मियोसिस 2 में ये सब नहीं होता है। मियोसिस 2 में देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, इसलिए मियोसिस 2 क्या होता है, वो जल्दी हो जाता है आपका, और ये प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। लेकिन मियोसिस 1 में क्या होता है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि many things happen in meiosis 1. Okay, now what is the importance of meiosis? Importance के meiosis इसके सॉरी इसके importance क्या है आपका, पहला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स। ऑल्सो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, कैसे, बाय रिडक्शनल डिविजन, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका डाइवर्सिटी मेंटेन होता है स्पीशीज में, और ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्लो होता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। देन फ्रॉम द माइटोसिस पार्ट से, ठीक है, माइटोसिस फास्ट होता है, लेकिन मियोसिस जो है वो स्लो होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मियोसिस और मियोसिस 2 मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है, फिर भी मैं आपको फिर से यहाँ पे समराइज कर देती हूँ। सो पहला बात, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ओके। सो पहला यहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे मियोसिस 1 में क्या हो रहा है आपका, ये आपका रिडक्शनल डिविजन हो रहा है, ठीक है, और मियोसिस 2 आपका क्या हो रहा है, ये आपका इक्वेशनल डिवीजन, ओके। नंबर 2 क्या हो रहा है कि इसमें आपका 2n से आपका क्या हो रहा है, nn, ओके। नंबर ऑफ सेल्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 2n46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ईच nn, ओके। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पेरेंट यहाँ पे क्या है, n से आपका nn, और दूसरा एन से आपका nn, मतलब यहाँ पे क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका 2 डॉटर सेल्स हो रहा है, यहाँ पे आपका 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और यहाँ पे क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ओके। नंबर 3 है आपका सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेशन होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेशन होता है, ठीक है। नंबर 4 क्या है, यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर। फिर मेसेज 1 क्या है, थोड़ा स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा इट इज सिंपल है ये प्रोसेस एंड फास्टर देन meiosis 1, ठीक है। This is all the difference between meiosis 1 and meiosis 2. So I hope आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। This is all about meiosis phase। तो meiosis में आपने देखा होगा, तो अगर आपको कुछ डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा, and for more such videos do subscribe to my channel and also share it with your friends, और kindly अगर आपको अच्छा लगे तो press on the like icon. Thank you so much for attending today's class. Have a great day. Thank you.